غور سے سماعت فرما لیجیے۔ سوال و جواب کے لیے مختلف جگہوں پر مائکس لگائے گئے ہیں، آپ وہاں پر قطار بنا کر سوال کے لیے انتظار کریں گے۔ سوال و جواب میں سب سے پہلے آج کے اس مجمع میں آنے والے غیر مسلم بہنوں اور بھائیوں کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام سے متعلق یا تقابل ادیان سے متعلق کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے موقع دیجیے۔ اگر وہ کیو میں پیچھے ہیں تو وہ لائن توڑ کر آگے آ سکتے ہیں اور سوال کے لیے مائک کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ غیر مسلم حاضرین کے سوالات کے بعد یا ان کی عدم موجودگی میں مائک کے قریب جو مسلمان سوال پوچھنا چاہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کے موضوع سے متعلق سوال کریں گے۔ سوال کرنے سے قبل اپنا نام، اپنا پیشہ، اپنا دین، غیر مسلم ہیں تو کس دین سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے، اور مسلمان ہیں تو اپنے دین کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد اپنا مختصر سوال کریں گے۔ سوال کا دورانیہ مختصر اور جملے 2 سے 3 ہونے چاہیے، زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ سوال کرنے کے بعد مکمل خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا جواب سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے دوران آپ کو گفتگو کرنے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے جب تک خود ڈاکٹر صاحب آپ سے اپنی گفتگو میں کسی بات کا اظہار کرنے کو نہ کہیں۔ اس نقطے کو دوبارہ سماعت کر لیں۔ سوال کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو توجہ سے سنیں گے۔ اس گفتگو کو ٹوکنے کا اور روکنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے، سوائے یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے خود دوران گفتگو کوئی سوال پوچھے اور اس کا جواب طلب کرے۔ جتنا جواب طلب کرے اتنا جواب دیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ سوال و جواب کی نشست ہے، بحث مباحثے یا مناظرے کی نشست نہیں ہے۔ آپ کو ڈیبیٹ کے لیے نہیں دعوت دی جا رہی، سوال پوچھنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ سوال پوچھیں گے، ڈیبیٹ کرنے پر انتظامیہ آپ کا مائک بند کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ میں جس بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی سوال کے لیے موجود ہے، سب سے پہلے اس کو دعوت دوں گا کہ وہ مختصر الفاظ میں، واضح الفاظ میں اپنا سوال پوچھے۔ مائک نمبر 1 سے سب سے پہلے سوال لے لیجیے۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کے سلامتی ہو۔ میرا نام ریاض خان ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اسلام نے میں آپ کے سوال کو سن نہیں سکتا ہوں۔ اگر آڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سوال پوچھنے والے کا فیڈ میرا مائکرو فون میں آنا چاہیے، اور میرا مائکرو فون کبھی آف مت کیجیے۔ جو بھی آڈیو پہ ہے میرا مائکرو فون اور جو کمپیئر ان کا مائکرو فون کبھی آف مت کرنا، اور دیکھیے کہ جو فیڈ آف دا کوشچن ہے میرے اسپیکر پہ سنائی دینا چاہیے۔ نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ پبلک سن سکتی ہے، میں نہیں سن سکتا، پبلک سن سکتی ہے، میں نہیں سن سکتا، جواب کیسا دوں گا میں؟ ہاں بھائی صاحب، آپ سوال واپس دہرا سکتے؟ جی، میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا۔ آپ ذرا دھیرے سے بات کریں گے کیونکہ یہاں مجھے سننے میں نہیں آ رہا، آستے سے دھیرے سے بات کریں گے، اونچی آواز میں۔ اچھا، میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے؟
साहब आपका नाम? मेरा नाम रियाज पॉल है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। नाम क्या? लाहौर से। नाम क्या है पूछ रहा हूँ? मेरा नाम रियाज पॉल है। रियाज पॉल जी। आप ईसाई हैं? जी मसीही हूँ मैं। मसीह। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है हमारे मसीह भाई ने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर वो बने, नबूवत हासिल हुई 40 साल की उम्र में, तो उसके पहले वो किसकी इबादत करते हैं? माशाअल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे एक अल्लाह की, और अल्लाह के अलावा किसी पे नहीं, किसी और की इबादत नहीं करते। वो मानते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई अक्स नहीं, उसका कोई बुत नहीं है, और वो उसी की इबादत करते थे। 40 साल की उम्र, अब 40 साल पहुंचे, उन्हें वही आई। जब वो गाड़े हिरा में गए, इकरा पढ़ो, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, तो फिर इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी खलक़, पूरी तफसील पे है। तो 40 साल की उम्र में वो नबी बने, उसके पहले उनको नबूवत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन वो मुसलमान था। मुस्लिम मतलब अपनी सारी जो दिल है, इच्छा है, वो अल्लाह के मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो नबूवत हासिल करने के पहले वो इबादत अल्लाह की ही करते थे, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे, इसीलिए वो पैगाम बाकी लोग से नहीं कहते थे। जब उनको अल्लाह का हुक्म आ गया, जब वो नबी बने, उसके बाद वो लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। उसके पहले भी वो मुस्लिम थे। जितने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो मुसलमान ही थे। मुस्लिम मतलब एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। डॉक्टर साहब मैं आपसे मज़ीद पूछूंगा कि सूरह मुदस्सिर आयत आपको एक सवाल करने की इजाजत दी गई थी, चलें। आपको बतला दिया गया है, डिबेट नहीं है, एक सवाल करने की इजाजत है। माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम बहन भाई है तो वो सवाल पूछ सकता है। यसु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी काशिफ जावेद है और मेरा तलक फैसलाबाद से है। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया। तो ये जो जमा का सीगा है, क्या ये ताज़ीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तिरा हुआ, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल भी है, ताज़ीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके थे और मेरा जवाब भी देना, मैं जवाब दोहराऊंगा फिर उनके सवाल का। जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम। अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो 2 किस्म के वी है। वन इज प्लूरल नंबर, वन इज प्लूरल रिस्पेक्ट। ये जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये भी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं
مثال کے طور پہ راجیو گاندھی انڈیا میں کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہندی میں کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم مطلب وہ ایک ہی انسان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو رائل سمجھتا ہے. تو کوئین آف انگلینڈ جب کہیں گی that we command you, I command you بول سکتے ہیں مطلب سنگولر، we command مطلب پلورل، لیکن یہ پلورل آف ریسپیکٹ ہے تہذیب کے لیے، عزت کے لیے. تو پادری صاحب میرے جواب کو جانتے ہیں، تو کہا کہ یہ جو ریسپیکٹ ہے یہ 12ویں صدی میں ایجاد ہوا. 12ویں صدی پادری صاحب کون سی زبان میں 12ویں صدی میں ایجاد ہوا؟ وہ انگریزی میں ہوگا، عربی میں نہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور یہ عربی زبان سینکڑوں سالوں سے ہے، اور سینکڑوں سالوں سے نحنو جو عربی زبان میں ہے اللہ جب استعمال کرتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم ابھی، یہ سینکڑوں ہزاروں سال سے آ رہا ہے. کوئی بھی عرب بھی سوال کرے گا انہیں. تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اور عربی زبان میں جب نحنو کیا جاتا ہے 2 طریقے، ایک ہوتا ہے پلورل آف نمبر، ایک پلورل آف ریسپیکٹ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے نحنو کہتے ہیں یہ ہے پلورل آف ریسپیکٹ، عزت کے لیے نمبر ہے. اور یہ عزت کے لیے 12ویں صدی میں ایجاد نہیں ہوا. اور رائل فیملی آپ جو بولتے ہو سکتا ہے انگریزی گریک کو سمجھیں گا، لیکن عربی زبان ہزاروں سال پرانی ہے. تو اس وقت عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا اس وقت بھی نحنو 2 طریقے کے تھے، ایک ہوتے تعداد کے لیے، ایک ہوتے عزت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے نحنو اپنے لیے، وہ عزت کے لیے. خوب پیار سے بچے. خواتین کی جانب سے اگر کوئی غیر مسلمہ موجود ہے تو وہ سوال کر سکتی ہیں، اگر کوئی غیر مسلمہ نہیں ہے تو جو بھی خاتون ہے مائک پر وہ سوال کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ ایک ہمارے ساتھ نان مسلم بہن ہے، انہوں نے شہادہ کرنا ہے انشاءاللہ. تکبیر، نعرہ تکبیر. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سمرین. قمرین. آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے؟ میں کرسچن ہوں. آپ کرسچن تھے. آپ کا اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی. آپ کیا مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے؟ خدا کے پیغمبر. ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی. ماشاء اللہ. 2 شرائط ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لیے، 2 کم از کم شرائط ہے. نمبر 1 یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. بہن آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. آپ اپنے ہوش و حواس میں کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. میں یہ جانوں کہ آپ اسلام کے قریب کیسے آئے؟ میرے ارد گرد میرے مسلم بہن بھائی رہتے تھے اور ان کی طرف دیکھ کے میں مسلمان بننا چاہتی ہوں. میری خواہش ہے. ماشاء اللہ. آپ کے ارد گرد مسلمان بہن اور لوگ تھے جس سے آپ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری. ابھی میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دوہرا سکتے ہیں. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے پیغمبر پیغمبر ہیں. ہیں. ماشاء اللہ. مسلمان ہو چکی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है पुराने गुनाह सब माफ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब करें। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नायक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ। तो मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए, ठीक है, बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। जब गैर मुसलमान के सवाल खत्म होंगे तो इंशाल्लाह आपको मौका देना। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करें। जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद है पहले वो सवाल करें। माइक नंबर 1 चला दीजिए। मसीह के अजीम नाम में तमाम हाज़रीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही तरह सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट करूंगा। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अज़ली सिफ़त और कायम ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सुम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सुम तीनों साबित हैं। यही 3 बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है और इसी कलाम का तजस्सुम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ और अहले इस्लाम नहीं मानते, इसलिए हमने अपने जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जाएगी। आप उसका सही आसान उर्दू में आप जो बात करें आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेंगे। तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, अब उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूँ। आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा। ओके, ये तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा ओके 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 ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है आप अंग्रेजी जानते हैं? जी आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानते। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछिए, आसान उर्दू में पूछिए। ओके ओके।
ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू नहीं। आप जब ओके ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी बोल देंगे। मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिसम इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अजली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और अल्लाह के, यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात, अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है, क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट, जी शिफ्ट, जी, तारीफ, सिफत, सिफत सिफत बोलिए ना। जी, हाँ, सिफत, आप क्या बोलिए? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह यही का किताब में जिसम इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और हाँ। शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। और यही बात जब हम कहते हैं कि यसु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सुम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया, अदली का मानी क्या है? हमेशा नेवर लास्टिंग। एवरलास्टिंग, हाँ, अदली है। तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे आप बगैर आस्ते से बात आपके करेंगे, पास नहीं जा आप सकता। अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा। पहला चीज है, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट में बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात करें, आस्ते से बात कीजिए। आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा। और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यसु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो हमारे वाला कीदा आपकी किताब से साबित है, तो फिर आप मौला मसीह के कदमों में आ जाएं। हाँ, अभी समझा आपका सवाल। ऐसा साफ पूछो ना, आप वो पढ़े तर्जुमा पढ़े लंबा लंबा। आपका ये कहना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह है, बराबर? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो खुदा का कलाम है। हमारे अकायद कौन खुदा का कलाम है? यसु मसीह। यसु मसीह ईसा अलैहिस्सलाम ना? जी, कुरान में भी लिखा है कि कलिमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके ओके। भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखे है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? आपने ऐसा पूछ लेना। अभी माइक बंद करो। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आपने सवाल पूरा किया, मैं सवाल अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आता ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है, हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो, पहले सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब, ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं। ये प्रॉब्लम है। तो बोलेंगे जाकिर भाई हिम्मत से बात करो।
इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है, तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से है वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं, क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। अब समझ रहे, आपकी गलतफहमी है।